Hello everyone, how are you? I hope you are good and happy as always. My name is Kushma Motivaras and I welcome you all on behalf of Gurukul Mahila Arts and Commerce College. Today I am going to discuss about the economic topic, and that topic is not only, this will not help you only in your studies, but it's also helpful in your competitive exams. Okay, and my topic is Indian banking system. Okay, so without wasting the time, let's get started. Before I start about the banking system, I want to explain you about the bank. Okay, what is a bank? Everyone know what is a bank, right? What the bank is doing. Bank deposit our money, and whenever we require, it will lend you, right? So, okay, bank is a financial institutions, right? Which deposit our money, that we can say our saving, right? And whenever we require, it will lend you as a loan. So this is the main, or we can say primary function of a bank. So एक institution है, financial institution. Financial means related to money. Okay. This define is given by Kenneth Cross. A bank is an institution which deals with money and credit. Right? Credit means udar. Okay. Next. Here today we will discuss in the Indian banking system about the history, and then we will discuss about the RBI. So let's see what is the history of Indian bank. ये सारी banks है. Bank of Hindustan, General Bank, ये सारी banks से it was established on this date. Okay, आपको पता है first bank कौन सी थी? You can see that Bank of Hindustan. Next. Okay. Bank of Hindustan जो है 1770 में established हुई थी by it was Bank of Hindustan, now inactive bank, is considered as among the first modern banks in colonial India. It was established by the agency house of Alexander and Company. Okay, Alexander and Company है. It was established by that. और आपको पता ही होगा कि पहले के ज़माने में क्या होता है, करेंसी पेपर करेंसी नहीं थी, जैसे what we are using right now, right? तब ऐसे करेंसी नहीं थी, तब क्या था, सिल्वर, गोल्ड, ये सब यूज होता था. सो बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या करता था, ये सारे सिल्वर गोल्ड सबको डिपॉजिट करता था, और व्हेनेवर रिक्वायर, जब भी किसी को जरूरत होती है, लाइक मर्चेंट है और ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको जब भी जरूरत पड़ती थी तो वो क्या करता था, उसको लैंड करता था. सो दिस इज द फर्स्ट बैंक in our Indian history. Bank of Hindustan 1770 में establish हुई थी, but after 1832 वो बंद हो गई, और वो जो ये Alexander and Company है उसके अंदर वो एक पार्ट हो गई. Okay. In India, the paper currency was first issued during British East India Company. ये जैसे अभी RBI करती है, राइट, पेपर करेंसी को इश्यू करती है, वैसे ही बैंक ऑफ हिंदुस्तान की फर्स्ट बैंक थी जो पेपर करेंसी को इश्यू करती थी. नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. फर्स्ट बैंक वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्टैब्लिश हुई थी. उसके बाद आई जनरल बैंक ऑफ इंडिया in 1791, but it fell due to some reason, right? Okay, उसके बाद three banks, Bank of Calcutta, Bank of Bombay and Bank of Madras. Bank of Calcutta were in the Bengal, this is where in the Bombay, and this is where in the Madras. ये तीनों banks established हुए as a private bank, right? और as a regional bank. फिर क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने ये तीनों बैंक को 1921 में एमलगेमेट किया, सभी तीनों बैंक को एक साथ कर दिया और इसको बना दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया.
bank with government participation on 27 January 1921. These are Bank of Bengal, Bank of Madras, Bank of Bombay. Bank of Bengal were known as the Bank of Calcutta. उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया और Bank of Bengal बन गया. Okay, this bank received exclusive rights to issue paper currency till 1861. 1861 तक उसको एक शोल राइट था पेपर करेंसी इश्यू करने का. You can see the picture of these three banks. ये सभी banks है, right? This is the symbol of Imperial Bank of India. Next, Imperial Bank of India. The Government of India took control of Imperial Bank of India on 1st July 1955 with RBI taking a 60% stake remaining in the State Bank of India. On this day, Imperial Bank of India becomes State Bank of India. Okay, ये जो तीनों बैंक्स थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, राइट? इन तीनों बैंक का नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. अब क्या किया? नेक्स्ट स्लाइड. On 1st July 1955, see 1935 में RBI, you all are aware about this name, Reserve Bank of India. 1935 में उसका establishment हुआ था और 1955 on that year ये Imperial Bank है, उसको क्या कर दिया? RBI के साथ ज्वाइनिंग कर दिया और उसको SBI बना दिया, ये Imperial Bank को. फिर वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही जानी जाती है अब तक. एंड दिस इज द ओल्डेस्ट बैंक और अभी तक कार्यरत है ये SBI. तो उसका पहले नाम था उसका इंपीरियल बैंक और नाम उसको कहते हैं SBI. दिस इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक स्टिल एग्जिस्ट is SBI, which was started as a Bank of Calcutta in 1806 and later renamed as a Bank of Bengal. As I told you before, पहले वो कलकत्ता थी, उसके बाद बंगाल हुई, फिर उसको तीनों बैंक का amalgamation हुआ, फिर उसका नाम रख दिया SBI. और याद रखना इसमें 60% स्टेक RBI का ही था, right? Only 40% स्टेक held by नहीं, मतलब कि पूरा कंट्रोल किस पर है? RBI पर. सिर्फ 40% कंट्रोल SBI पर है. ओके, नेक्स्ट. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एक डायलॉग है शहंशाह मूवी का. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, राइट? It is just like that. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उसी तरह ही है. सभी बैंकों की बैंक, इवन गवर्नमेंट के भी बैंक है, इसलिए उसको बैंकर्स बैंक या फिर गवर्नमेंट्स बैंक कहते हैं. Let's see the history of RBI. Reserve Bank of India established on the 1st April 1935. 1934 में एक एक्ट पास किया गया था, RBI एक्ट. उसके तहत 1935 में ये RBI है वो establish हुई and it was the first bank to be nationalized in 1949. 1935 में वो firstly established हुई थी but it was just as a private bank, right? इसलिए 1949 में उसको क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट ने ले लिया. and this is the central bank, right? or we can say apex banks. okay, सेंट्रल बैंक क्या होती है? जो कोई भी कंट्री होती है ना, उन सभी की एक सेंट्रल बैंक होती है. जैसे चाइना की है बैंक ऑफ चाइना, कनाडा की है बैंक ऑफ कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया की है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट? सेम वे इंडिया हैज अ सेंट्रल बैंक, दैट नाम इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देन वी कैन से RBI से भी जानी जाती है. एपेक्स मतलब होता है हैड, जो सभी जैसे हम
स्कूल कॉलेज में होते हैं ना प्रिंसिपल जो हेड होते हैं, वैसे ही सभी बैंकों की हेड होती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट हैज 22 रीजनल ऑफिसेस. लेट्स सी वेयर इज द नेक्स्ट रीजनल, नेक्स्ट मैप. Okay, this is the map of India, and you can see 22 regional offices of RBI in Gujarat. It is located at Ahmedabad, right? Its main office is at Mumbai. Remember that. Okay, before. Previous slide. Okay, let's see the history of RBI. It was set up on the recommendations of Hilton Young Commission. हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिया था आरबीआई को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए 1935 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड हुई. इट वाज स्टार्टेड एज अ शेयर होल्डर बैंक विद पेड अप कैपिटल. ये भी याद रखना, 5 करोड़ की पेड अप कैपिटल के साथ वो स्टार्ट हुई थी. इनिशियली जब वो 1935 में स्टार्ट हुई थी ना, तब वो कोलकाता में थी, बट इन 1937 में वो मुंबई में ट्रांसफर हो गई, और अभी तक उसकी जो मेन जो ब्रांच है, मेन जो ऑफिस है, वो मुंबई में ही है. 1937 से. इनिशियली इट वाज प्राइवेटली ऑन. सिंस 1949 RBI is fully owned by the government of India. That is discussed already. I already discussed that. Now you can also remember that the first governor. Okay, what is governor? Governor means the head of the branch. RBI के जो head होते हैं ना, उसको governor कहते हैं, right? So जो first governor थे वो थे Sir Austin A. Smith. और जो इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट फर्स्ट जो थे वो थे चिंतामन देसाई. नेक्स्ट इस पिक्चर को देखो, नाम है शक्तिकांत दास. फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर ये है, और ये पहले एक इंसान है जो नॉन इकोनॉमिक्स गवर्नर है. आज से पहले बस सभी जो भी गवर्नर थे वो इकोनॉमिक्स ही थे, पर ये पहले ऐसे गवर्नर है जो नॉन इकोनॉमिक्स है, और वो ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है. Previous slide. This is an organization structure, means कैसे आरबीआई में लोग कैसे काम करते हैं. वे जैसे मैंने बोला, गवर्नर इज द हेड, ये हेड है. हमने देखा होगा जो कोई भी करेंसी नोट होती है उसके ऊपर गवर्नर की सिग्नेचर होती है, राइट? उसके नीचे है डेप्यूटी गवर्नर, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, उसके अंदर चीफ जनरल मैनेजर्स एंड सो. सो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आरबीआई का. Okay, next. Okay, functions of Reserve Banks of India. I hope you are clear with RBI. RBI क्या है? Reserve Bank of India. Now let's see the functions. As I told you that RBI is the main और apex head बैंक है, right? So उसके functions भी obviously बहुत सारे होंगे और बहुत important functions होंगे. These functions are इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी. मैंडेटरी जिसको हम ट्रेडिशनल फंक्शंस भी कहते हैं, और वी कैन से जनरल फंक्शंस. जनरल मींस सिर्फ इंडिया में नहीं बट पूरे वर्ल्ड में सारी जो कोई भी सेंट्रल बैंक्स है ना, वो सारे ये फंक्शंस तो करते हैं, राइट? उसको कहते हैं जनरल फंक्शंस. और इसके अलावा है नॉन मॉनिटरी फंक्शंस. इसके अंदर है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर, देन प्रमोशनल फंक्शंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट, these are the traditional functions. I will discuss it later. Then next, promotional functions and then supervisory functions. Okay, next. Okay.
let's discuss traditional functions of Reserve Bank of India. The first functions of RBI is issue of currency. This is the general and common functions that everyone aware about this issue of currency. Okay? पेपर करेंसी जो कोई भी मतलब पेपर करेंसी को इश्यू ये करता है, इसकी डिजाइन है, प्रिंटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन, इवन उसको डिस्ट्रॉय करना हो ना तो भी यही करती है आरबीआई. एंड दैट issue exchange and register currency of coins if it's not fit for circulations. कभी-कभी ऐसा होता है कि circulations के लिए fit ना भी हो तो क्या करते हैं, हम उसको destroy कर देते हैं. Okay, and the other things that you have to remember that सभी paper currency यहाँ पर issue होती है सिवाय 1 rupee note के. 1 rupee note is not printed here, but it is printed at the ministry, finance ministry of Indian departments, right? So remember that. Okay, next. Okay, banker to the government. Government को भी ये हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? As a banker means कि जब भी उसको पैसे की जरूरत होती है गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो, कोई भी हो, तो वो पैसे कहाँ से लेता है? आरबीआई. और आरबीआई के वहाँ पर उसका एक अकाउंट भी होता है, राइट? देन इट वर्क एज एन एजेंट. एजेंट क्यों? एजेंट का मतलब होता है जो ऑन बिहाफ काम करता है, इसको मतलब एजेंट होता है. यहाँ पर आरबीआई भी वैसे ही गवर्नमेंट के बिहाफ में कुछ काम करता है, लाइक आईएमएफ ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस के जहाँ पर कभी भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या फिर कभी भी जरूरत पड़े तो वो यहाँ से लोन भी ले सकते हैं गवर्नमेंट. कोई भी, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट हो, ये यहाँ से लोन वगैरह ले सकता है, कुछ गाइडलाइंस ले सकता है. तो ये मॉनिटरी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है. और कैसे ये काम करता है आरबीआई? मान लो कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ से लोन दी, राइट, 10 करोड़ की, राइट, तो उसको पे कौन करेगा? तो पे करेगा आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बिहाफ में ये पे करेगा. सो एज अ एजेंट भी वो वर्क करता है. क्लियर? ओके. एंड नेक्स्ट लाइन, दैट इज एडवाइजर. बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर. एडवाइस, जब भी गवर्नमेंट को एडवाइस की जरूरत होती है तो आरबीआई के जो भी गवर्नर है, इसकी जो कमिटी है, जैसे हमने अभी पहले स्लाइड में देखा था उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेप्यूटी मैनेजर, सब कुछ, राइट. तो वो सब क्या करते हैं? इसको हेल्प करते हैं, एडवाइस देते हैं, फाइनेंशियली एडवाइस देते हैं. ओके, let's see the banker to the government. Abe is a banker, agent and advisor of the government, and it keeps the deposit of the central and state government and makes payments on behalf of the government. And it does not pay interest. Yes, ये बात याद रखना. जब भी हम किसी भी बैंक में जाते हैं तो हम अगर मनी डिपॉजिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? We get interest, right? But here government does not get any interest. अगर उसका आरबीआई में अकाउंट है. Remember that. Next, banker to the bank. Here we are talking about the commercial bank. सारी commercial bank है. Commercial bank मतलब कि हमारा जो अकाउंट होता है पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, ये सारी बैंक जो कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियली बिजनेस करती है ऐसे, राइट. तो कॉमर्शियल बैंक को भी कभी कभी क्या जरूरत पड़ जाती है? मनी की. तो वो सब कौन हैंडल करता है? आरबीआई. आरबीआई उसको लोन भी देता है, राइट. मतलब कि वो एक बैंक की भी बैंक है आरबीआई, इसलिए उन्होंने बोला है बैंकर टू द बैंक. सभी कॉमर्शियल बैंक की जो भी शेड्यूल बैंक में आते हैं वो सारी बैंक की हेल्प करता है आरबीआई. It maintains banking accounts of all scheduled banks and the right of controlling the activities of
द कंट्री। यस, जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक जो भी शेड्यूल के अंदर आते हैं, शेड्यूल बैंक के अंदर जो भी आती है उसके सारे अकाउंट्स आरबीआई के अंदर होते हैं। और जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो कुछ भी काम करती है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है आरबीआई, मतलब कि रेगुलेशंस, वो हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करता है, पूरी कंट्रोल करेगा उसकी सारी एक्टिविटीज पर कॉमर्शियल बैंक। Next function of the RBI is lender of last resort. You can see the picture here. Clear हो गया होगा पिक्चर देखकर ही कि जब भी कंट्री को या फिर बैंक को फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपीरियंस हो, right? Whenever he experience a financial crisis, then at that time RBI helps them, right? As a lender of last resort. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब वही होता है कि इमरजेंसी के टाइम हमें हेल्प करे। और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मोस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक ही होती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पर पूरे वर्ल्ड में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यही होती है, सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई है। RBI acts as a lender of last resort of Indian government की एक lender of last resort है and prevents the government from the suffering of liquidity shortage। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाए जैसे अभी फिलहाल ही कोरोना कोविड-19 की वजह से जो लिक्विडिटी शॉर्टेज आती है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट को बहुत कुछ सफरिंग करना पड़ता है, तो आरबीआई क्या करती है, उसको हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। तो कस्टोडियन का मतलब होता है टू कीप द थिंग्स सेफ। मतलब जो फॉरेन से करेंसी आती है, डॉलर हो, पाउंड हो, यूरो हो, जो कुछ भी हो, उन सबको क्या करते हैं, वो सेफ अपनी कस्टडी में रखते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। The RBI acts as the custodian of the country's foreign exchange reserve, which manages exchange control and acts as the agent of the government in respect of India's membership of the IMF. It buys and sells rupees as well as foreign currency in the foreign exchange market to maintain the stability exchange rate. Yes. कस्टोडियन का काम होता है, वो मैनेज करता है कि ज्यादा पैसे इंडियन रुपीज ज्यादा बाहर ना चले जाए, राइट, उसके भी ध्यान रखता है। और फॉरेन करेंसी की जरूरत है यहाँ पर, तो वो ऐसे प्लानिंग करता है, वो मैनेजमेंट करता है, राइट, ताकि फॉरेन एक्सचेंज है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोलर है ये, कैसे, ज्यादातर कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। मतलब जब भी कोई भी कस्टमर्स हो, मतलब कि जो उसके ग्राहक हो, उसको सपोज गिविंग द एग्जांपल, आपने CRR ये तो सुना ही होगा, CRR ये एक क्रेडिट कंट्रोलर का एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। इसमें मान लो कि एक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, और ये बैंक उसके पास 30 करोड़ उसके अकाउंट में है, तो वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे सकेगी और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकेगी। ओके, वैसे कोई बैंक है तो उसके पास उससे भी ज्यादा है, तो वो उससे भी ज्यादा क्या कर सकेगी, बैंक मतलब कि कस्टमर को दे सकेगी लोन वगैरह। तो यहाँ पर कैसी सिचुएशंस आएगी कि जो क्रेडिट का जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल यहाँ पर नहीं रहेगा, राइट, मनी का जो एक वैल्यू जो है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं रहेंगे। इसीलिए आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है थ्रू दिस मॉनिटरी क्वांटिटेटिव है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि
कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट स्लाइड। सी, क्रेडिट कंट्रोल इज एन इम्पोर्टेंट टूल और वीपन ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी। ये एक इम्पोर्टेंट टूल है that is used by RBI used to control the demand and supply of money. Yes. जो मनी है उसकी डिमांड ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, उसकी जो सप्लाई है वो भी एक स्टेबल करना पड़ता है। तो ये स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, इस विपन को वो यूज करते हैं टू liquidify in the economy. There are two types of method employed by the RBI to control credit creation, that is quantitative and qualitative. Quantitative में जो ये बात की CRR, right? ये उसका एक एग्जांपल है। So ये से क्रेडिट कंट्रोलर भी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड पब्लिकेशंस ऑफ डेटा। जो भी कमर्शियल बैंक जो कुछ भी काम करती है उन सबका क्या करती है, वो कलेक्ट करती है, रिपोर्ट कलेक्ट करती है और उस हिसाब से कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं ज़रूरत है। और खुद आरबीआई का काम, जो आरबीआई जो कुछ भी काम करती है वो सारा एक रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट बनाकर वो पब्लिक में क्या करती है, पब्लिश करती है सभी को, राइट। और वो ध्यान रखती है कि ये चीप रेट में उस सबको मिल जाए। तो कलेक्ट भी करती है डेटा और पब्लिश भी करती है। नेक्स्ट, collects and publish statistical data and economical information through its research department. RBI में ये एक डिपार्टमेंट अलग ही है, रिसर्च डिपार्टमेंट, जहाँ पर वो क्या करता है, they collect and publish all the statistical data. The reports and bulletins are regularly published. Yes, regularly publish होते हैं, annually होता है, quarterly होता है, half yearly होता है, ऐसे उसका एक टाइम होता है। So ऐसे they will publish the